इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन्वॉल्व था, उसको हम यूएएम कहते थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वैसे ही क्वेश्चंस अभी और थोड़े करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डेशन रहेगा। यू नो व्हाट इज रिटार्डेशन? Likewise in acceleration there is increase in speed, retardation there is a decrease in speed. जैसे आप गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करते हैं, so there is a decrease in speed sort of thing. जो फॉर्मूले आप यूज करते हैं ना यूएम के, वो 4 फॉर्मूले v इक्वल्स टू u प्लस at वाले इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, उन 4 फॉर्मूले में बेटा अगर एक्सेलरेशन है तो a का वैल्यू पॉजिटिव रखा जाता है, एंड इनकेस अगर रिटार्डेशन है तो a का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो whenever the value of a comes out to be negative, remember it is gonna be a retardation, or what you call it as a deceleration sometimes. The question is, if a train is traveling at 72 km per hour, the train has a constant speed of 72 km per hour, the train has to be stopped, but before stopping the train has to cover a distance of 200 meter. Now what retardation, what deceleration is to be expected? We'll go on to solve this question. First of all, the train speed is 72 km per hour. We need to convert it into the SI unit. SI is what? Meter per second. We should go for that. किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, so you need to multiply by 10 to power 3. R को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, so we need to take care of 3600. Understand how the R gets converted to second? Simple. Hours get converted to minutes and minutes to seconds. That is 60 into 60. That makes you 3600. Now that is nothing but 72 into, now this is 1000 upon 3600. So if you take the ratio, that would be 5 by 18. So it is meter per second. Now I would request and I would suggest actually for you people कि whenever you need to convert from kilometer per hour to meter per second, you remember this conversion factor, that is 5 by 18. And when you will be going vice versa, if you need to convert from meter per second to kilometer per hour, then you should take the vice versa reciprocal, that is 18 by 5. तो याद रखें ये conversion factor डायरेक्ट आपको काम में आएगा। बाकी आप यहाँ पे अभी कर सकते हैं 4 times 4 5, that is 20, it is meter per second. तो रिमेंबर ये किसका स्पीड था? ट्रेन का इनिशियल स्पीड था। फाइनली ट्रेन को रोकना था तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 0। और ये सब कितने डिस्प्लेसमेंट में हो जाना चाहिए? 200 मीटर में। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेसिक वाला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as का कंसेप्ट, जिसमें फाइनल स्पीड है 0, इनिशियल स्पीड 20 है, तो उसका स्क्वायर 400, ट्वाइस a हमको फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू हमको 200 दिया है s। देखिए तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो a का वैल्यू -1 आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए वैल्यू निगेटिव आया, दैट इज नथिंग बट डिसेलेरेशन। We'll see a similar kind of next question. So the velocity of bullet is reduced from 200 to 100 meter per second while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter. Okay, here is a wooden block which is having a thickness of 10 centimeter. 10 centimeter is nothing but 0.1 meter. So there is a bullet which is entering and then it is leaving the block. While entering, the initial speed was 200 meter per second, and when it is leaving, the final speed is 100 meter per second. Yes. So आप देख रहे हैं कि स्पीड जो है वो रिड्यूस हुई है, मतलब यहाँ पे स्पीड जब कम होती है तो रिटार्डेशन होता है, वही एक्सपेक्टेड रिटार्डेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इस रिटार्डेशन के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हम लोग s से डिनोट करते। सो अगेन यू कैन गो फॉर द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, जहाँ पे v इज अ फाइनल स्पीड, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 200 का स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस a आप जानते नहीं है, s के बारे में यस आपको पता है, दैट इज 0.1। इसको सॉल्व करना आसान है, a की इक्वेशन है, a है, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, देखिए कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी मैथमेटिकल स्किल्स बड़ी काम में आती है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं 100 का स्क्वायर करेंगे,
यहाँ पे 200 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, फिर उन नंबर्स की एडिशन करो, सो एंड सो। हालांकि वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट एक अलग एस्पेक्ट से इसको देखते हैं। आपने 200 को अगर इधर शिफ्ट किया तो ऑलरेडी 100 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर है, और इधर कितना है, ये रहेगा आपका 0.2a। अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आता है, a माइनस बी a प्लस बी। a माइनस बी मतलब 100 में से ये गया तो माइनस 100 और इनका एडिशन हुआ तो 300। इट इज a माइनस बी, इट इज a प्लस बी, विच इज अ फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर से आप 0.2 से डिवाइड अप कर लेंगे, सो दैट इज नथिंग बट a। हालांकि आप ये कर सकते हैं कि जो 0.2 है इसका यहाँ का पॉइंट हटा के आप एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ चढ़ा सकते हैं। अब आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली, है ना। ये जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 53 जार दैट इज 150 के ऊपर 3 जीरो, 150 के ऊपर 3 जीरो मतलब 15 के ऊपर 10 के ऊपर 4 जीरो, ये माइनस आया और यही आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू है। वैल्यू किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली ये वैल्यू निगेटिव आया, रीजन वही है कि स्पीड कम हो रहा है, यहाँ पे डिसेलेरेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। There is a car which is moving with constant speed 15 मीटर पर सेकंड। तो कार का स्पीड है u equals to 15 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड ऑफ कार। Suddenly the driver sees an obstruction on the road and takes 0.4 second to apply the brake. The brake causes a deceleration of 5 meter per second square. Find the distance traveled by the car before it stops. ऐसा बहुत बार होता है। ऑब्वियसली मेरा कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, आगे में मुझे कुछ एक ऑब्स्ट्रक्शन दिख गया, सपोज कुछ है, रोड ब्लॉकेज है या कोई जानवर आ गया बीच में, तो ऐसे में मैं आई विल पुट ऑन द ब्रेक्स। मेरी कोशिश रहेगी कि कार जल्द से जल्द रुक जाए, लेकिन आपको व्हेन यू पुट ऑन द ब्रेक्स यू नीड सम रिएक्शन टाइम ना। आपने देखा और तुरंत हो गया ऐसा तो नहीं, यू रिक्वायर सम रिएक्शन टाइम। ऐसी इस केस में वो ड्राइवर ने एक रिएक्शन टाइम लिया, कितना, 0.4 सेकंड। अब 0.4 सेकंड बहुत बड़ी तो बात नहीं है। अब तो ये भी समझते हैं कि 1 सेकंड अपने आप में इतना छोटा होता है, 1 सेकंड का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा 0.4 सेकंड उस ड्राइवर ने लिया। और 0.4 सेकंड के बाद मतलब ब्रेक का एप्लीकेशन हो गया, मतलब आफ्टर 0.4 सेकंड रिटार्डेशन हैज स्टार्टेड एक्टिंग, एंड हाउ मच रिटार्डेशन, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको बताना है कि ऐसे में कार जो है कितनी दूर जाके रुकी। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं ये कार के मोशन को 2 फेजेस में डिवाइड करता हूं, मतलब आपका टोटल आंसर डी जो है वो d1 प्लस d2 रहेगा। कितने दूर जाके कार रुकी उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा, एक d1 और दूसरा d2। ये d1 कौन सा हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जब तक रिटार्डेशन वाज नॉट इनटू इफेक्ट, एंड d2 वो हिस्सा है व्हेन द रिटार्डेशन इज इन इफेक्ट। रिमेंबर, रिटार्डेशन इज नॉट इन इफेक्ट। Why it is not in effect over here? Because the driver was taking some reaction time ना। तो जितना रिएक्शन टाइम उसको लगा उतने टाइम पे कार तो पुराने स्पीड से चल ही रही थी, एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक फिर रिटार्डेशन की वजह से कार का स्पीड जो है कम कम होते चले गया। तो अगर आप देखें तो D1 के टाइम पे यूनिफॉर्म मोशन था, जबकि D2 के टाइम पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या आप एक्सेलरेटेड मतलब रिटार्डेड मोशन की मैं बात कर रहा हूं। तो फॉर्मूला यूज करते, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कितना स्पीड था बेटा, 15, और कितने टाइम के लिए चल रहा था, 0.4 सेकंड, प्लस इस डिस्टेंस की बात करते। डिस्टेंस मतलब ये बेसिकली इस केस में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। रिमेंबर यहाँ पे 15, ओ ये आप यूज कर पाएंगे क्या, नहीं, टाइम नहीं दिया है। सो वी बेसिकली स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। D1 आ गया, वेरी गुड। D2 हम जानते नहीं है, चलिए उसको निकालते हैं। D2 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। फाइनली कार रुकने वाली है, इनिशियली कार का स्पीड कितना है, 15 का स्क्वायर ट्वाइस
रिटार्डेशन कितना अप्लाई हुआ बेटा 5, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा लेकिन साथ में माइनस रहेगा, रीजन आप समझ गए, ए का वैल्यू निगेटिव पुट करना पड़ेगा और एस का मतलब मैंने D2 से डिनोट किया है। सो हाउ मच इट इज, 15 का स्क्वायर इज लाइक 225, उसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया, हियर वी हैव 10 D2, तो यहाँ से D2 का आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 करो 22.5 मीटर आएगा। इसको आप यहाँ पे एंट्री करो तो कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा 22.5 इंटू दिस इज हाउ मच 6 प्लस 22.5, सो फाइनल आंसर इज गोना बी 28.5 मीटर। इतना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया बिफोर इट हैज स्टॉप्ड। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। There is a particle moving with constant acceleration from A to B in a straight line AB, has velocities u and v at point A and B respectively. Find the velocity of particle at the midpoint of AB. There is a particle which is moving from A to B, as they say, starting point A, ending point B, it is moving in this direction. तो A पॉइंट पे इनिशियली स्पीड था उसका u, B पॉइंट पे उसका स्पीड था v, एंड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो मोशन हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वो एक्सेलरेशन को मैंने A से डिनोट किया, सो इट इज बेसिकली UAM, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब A और B का मैंने मिड पॉइंट माना है C, मिड पॉइंट समझते हो, ऐसे सिंबल में दे देता हूं, सो इट्स अ मिड पॉइंट। C के ऊपर का स्पीड आपको पता करना है, लेट्स से दैट स्पीड इज v1, वो हमको पता करना है। नाउ हाउ वुड वी कम टू नो दिस थिंग? मैं काम करता हूं, पहले सिर्फ AC इतना मोशन मानता हूं ना, सिर्फ A से लेके C तक आप कंसीडर करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, ये पूरा A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो अगर मैं D मानूं तो ये इतना हाफ हो जाएगा D का, दैट इज D/2। ये क्या हो जाएगा D/2, क्योंकि टोटल कितना है D। अगर मैं सिर्फ A से लेके C तक कंसीडर करता हूं तो यहां पे आप कोई एक फॉर्मूला पुट इन कर सकते हो, जैसे v² = u² + twice AS। नाउ बी वेरी केयरफुल, A से लेके C तक के फाइनल स्पीड v1 है, इनिशियल स्पीड u है, ट्वाइस AS, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, A से लेके C तक डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा D/2, सो ऑलरेडी इट इज 2 गेटिंग कैंसल। ये A से C तक का कंसेप्ट हुआ। अब आप पूरा A से लेके B तक का कंसिडर कर लो, पूरा A से B। इसमें व्हाट आर यू गोना गेट इज v² = u² + twice AS। इस पे ध्यान देंगे, v माने यस फाइनल स्पीड, इट्स द इनिशियल स्पीड, ट्वाइस AS, S मतलब अब पूरा A से B के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना माना हमने D, तो इसके जगह आप D पुट करोगे। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2। आपको क्या पता करना है? आपको v1 पता करना है। आप कर सकते हैं कैसे? सपोज आपने क्या कर दिया कि क्या करेंगे, डिवाइड करते या d का वैल्यू निकाल लेते। लेट्स डू अ थिंग ओवर हियर कि मैंने यहां से ना AD का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बताइए AD का वैल्यू क्या आएगा? v1² - u²। यहां से भी AD का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा v² - u² डिवाइड बाई 2। इज इट ओके? दोनों जगह AD दिख रहा था। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम रहेगा, मतलब v1² - u² इज इक्वल्स टू, दूसरे साइड में क्या है v² - u² डिवाइडेड बाय हाउ मच इट इज 2। अब तो सॉल्व करना आसान है। v1² इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी वी हैव v - u²/2, ये -u² उधर जाके +u² बनेगा, सो v² क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हो तो +u² आएगा बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1²। अगर आपने यहां से स्क्वायर हटाया तो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज अ स्क्वायर रूट। तो ये v1, ध्यान दे v1 क्या था, v1 स्पीड था मिड पॉइंट का, एंड वी हैव डेफिनेटली गॉट दैट।
Now another very good question. A train starts from station A with uniform acceleration a1 for some distance, then goes for retardation a2 for some more distance to come rest at station B. The distance between station A B is 4 km. The train takes 4 minutes to complete the journey. Now accelerations are given in kilometer per minute square. So we need to show that 1 upon a1 plus 1 upon a2 equals to 2. Now listen to this question. What has been said is there is a station A and there is a station B. ट्रेन को जाना है A स्टेशन से लेके B स्टेशन तक के. ट्रेन का जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो इनिशियली उसका स्पीड कितना था 0. फाइनली जब वो B पे पहुंची तब उसका स्पीड कितना है 0. एक स्टेशन से चढ़ पड़ी, जाके दूसरे स्टेशन पे रुक गई. लेकिन जब पहले स्टेशन से चढ़ पड़ी तो उसने अपना स्पीड का कुछ टाइम तक बढ़ाया और जैसे ही दूसरा स्टेशन पास में आ रहा था तो फिर उसने अपना स्पीड कम करते गया. तो उन्होंने कहा है कि कुछ एक, मैं यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट मान लेता हूँ C, ये C तक के उन्होंने अपना स्पीड बढ़ाया, मतलब ये एक्सेलरेशन A1 था और उसके बाद उन्होंने स्पीड घटाया, वो एक्सेलरेशन A2 था. एक्सेलरेशन नहीं, बेसिकली उसको आप लोग रिटार्डेशन कह सकते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं. तो बताइए A1 एक्सेलरेशन के हिसाब से उसने कुछ एक डिस्टेंस D1 ट्रैवल किया होगा और उसके लिए कुछ टाइम T1 लगा होगा. इसके लिए उसको कुछ डिस्टेंस उसने D2 ट्रैवल किया होगा और टाइम कितना लगा होगा T2. नाउ रिमेंबर क्वेश्चन में हमको दिया था कि ये दो स्टेशन के बीच की दूरी है 4 किलोमीटर्स, लेकिन दो स्टेशन के बीच की दूरी हमको दिख रही है D1 प्लस D2. दो स्टेशन के बीच में ट्रेन को पहुंचने में कितना टाइम लगा 4 मिनट दिया हुआ है, 4 मिनट. लेकिन दोनों स्टेशन के बीच में पहुंचने में हमने यहाँ पे टाइम कितना अज्यूम किया है T1 प्लस T2. बस आप इन दो के भरोसे जो चाहते हैं वो निकाल सकते हैं. आप चाहते क्या है, आप इसको प्रूव करना चाहते हैं. करते स्टार्ट. मैं ऐसा मानता हूं बेटा कि C तक के जब पहुंच गई ट्रेन तो यहां पे उसका स्पीड v1 रहा होगा सपोज. तो पहले डिस्कशन स्टार्ट करते AC का. A से लेके C तक जो मोशन हुआ, इफ यू टॉक अबाउट दैट, आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at. नाउ रिमेंबर ये AC के दौरान इनिशियल स्पीड कितना है 0, तो यहाँ पे आपने 0 पटक दिया और फाइनल स्पीड आपने कितना लिखा यहाँ पे v1. समझ रहे ना, सिर्फ AC पे फोकस करिए आप. और टाइम कितना था T1, एक्सेलरेशन कितना था A1, तो यहां से आपका T1 निकल के आ गया, कितना आया बेटा v1 अपॉन A1. अब वैसा ही आप करेंगे कहां से, C से लेके B तक के. ये C से लेके B तक के, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करता, v इज इक्वल्स टू u प्लस at. v मतलब फाइनल स्पीड कितना है 0, u मतलब इनिशियल स्पीड कितना है इस सेशन में v1, एक्सेलरेशन a2, टाइम t2, एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस. यहां से बेटा जी अगर आप t2 निकाल गए तो क्या होगा v1 अपॉन a2 आएगा. ये आपका आंसर हो गया T2 का. सो नाउ ऑब्वियसली चलिए दो बातें हमको पता चल गई. लेट्स जस्ट कॉल दिस एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. T1 T2 पता कर गया ताकि इस चीज में काम में आएगा. लेट्स फोकस ऑन टू नाउ D1 एंड D2. इस AC के लिए एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS. यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS CB के लिए. जब आप AC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं बेटा, तो AC के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल स्पीड v1 है, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, A1 और S1. हाँ जी S1 नाम दिया था मैंने, इसको D1 नाम दिया था. अब जब आप CB के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो CB के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल स्पीड कितना है 0, U कितना है v1. देखो इनिशियल स्पीड v1, A2 और S को नाम क्या दिया है D2. फिर एक बार बताएंगे यहां पे अभी कि भाई यहां पे ये D1 निकल के आ गया ना. D1 का वैल्यू क्या होगा v1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस A1. अब
D2 का वैल्यू क्या आ गया? D2 का वैल्यू, अच्छा A2 पुट करूं या -A2? -A2 क्योंकि सेकंड वाले केस में रिटार्डेशन था, याद करें। तो यहां से D2 आ जाएगा बेटा V1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस A2। अब काम बहुत ही आसान हो गया, जैसे कि मैंने कहा T1 T2 आपके आगे आ गया है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। D1 D2 का इवैल्यूएशन यहाँ पे हो सकता है, तो दोनों से आपका जो प्रूफ है वो बन ही जाएगा। चलिए वो भी मैं बना के दे ही देता हूँ। समझिए अभी, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 4। क्या है T1 और T2? उन दोनों में V1 कॉमन है, तो एक आएगा 1/A1 प्लस 1/A2 इक्वल्स टू 4। दिस इज द स्टोरी। और D1 प्लस D2 की बात करते, D1 प्लस D2 इक्वल्स टू कितना है बेटा? 4। अब D1 कितना है? V1 स्क्वायर, दोनों में V1 स्क्वायर कॉमन है, दोनों में एक्चुअली 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पे भी आएगा 1/A1 1/A2 एंड इट इज अगेन इक्वल्स टू 4। ठीक है, सब सही हो गया। अब आपको क्या पता करना था? 1/A1 प्लस A2 वाला कंसेप्ट ना। तो सिंपल है, आप क्या करो, यहीं से चेक करो। V1 का वैल्यू क्या आया? 4/V1 का वैल्यू आया 4/1/A1 प्लस 1/A2। ये जो V1 का वैल्यू है इसको आप उठा के यहां पुट करें। जब आप यहां पुट करेंगे तो देखिए V1 के जगह ये ब्रैकेट आएगा, कौन? 4/ ऐसा, डिवीजन में 2, और ऊपर ऑलरेडी क्या था? यहाँ पे बाजू में था 1/A1 1/A2 एंड इज इक्वल्स टू 4। याद रखे V1 का स्क्वायर था तो इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा। सो बेसिकली ये नीचे का जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट एक दफा कैंसिल हो जाएगा, मीनिंग यहाँ का ये स्क्वायर कैंसिल होगा। ध्यान है, स्क्वायर कैंसिल होगा। या अभी नहीं करता हूं, आप एक साथ भी कर सकते हैं, या लेट अस डू दैट। ये स्क्वायर को कैंसिल किया क्योंकि यहाँ का एक 4, यहाँ का एक 4 इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल होगी क्योंकि स्क्वायर है ना, ये दो बार था, तो एक बार इसके साथ कैंसिल हुआ, ये एक बार इसके साथ कैंसिल हुआ, तो बचा सिर्फ क्या है? एक 4 बचा है और ये 2 बचा है, तो 4/2 मतलब ये कितना हो गया? 2 अपॉन दिस थिंग, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ये आंसर आएगा। यही आपका प्रूफ था। ठीक है, you go for the next question till then. Let's cover that question in the next video.